Hello students, today we will discuss about parallelogram law of vectors. Now here experimentally we will be verifying the parallelogram law of vectors what you have studied in your mathematical methods chapter, that is second chapter. There you have discussed that this parallelogram law of vectors, if you remember this diagram was given, that is two vectors are given along the adjacent sides of the parallelogram. P bar is along one side and Q bar is along another side, and theta is the angle between vector P bar and Q bar. Then resultant r bar, which is given across the diagonal of the parallelogram starting from that common point, the formula is given to you as r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. This is the formula what you will be using. Now how to do this experiment? This is the experimental arrangement. Now in this experimental arrangement what we do that we have two pulleys over which we attach this thread, and this thread are attached with the hanger weights at three position, at the two end and at the middle section. These are our hanger weights. You might have seen this hanger weight in static friction. Each slotted weight is of 50 grams. So we'll use this slotted weights of 50 grams each. First we will remove this all the slotted weight, and as per our requirement we will be changing the weights. So we have got this three hanger. So this hanger is of 50 grams each. Now how to do this experiment? So now we'll consider the readings. That is first observation. Suppose if I consider mass for weight P, that is for P I will consider 50 gram, for Q also I will consider 50 gram, and let us see what should be kept in R. Now this is our experimental arrangement. A thread is given where at both the ends we have made the arrangement to attach the pulley. So from both the ends I will attach this 50 gram slotted weights, and in between I will keep this 50 gram slotted weight. This is how this arrangement is given. After once this arrangement is done, then we have to place the paper behind this. So this is our arrangement of these weights: 50 gram for P, 50 gram for Q and 50 gram for R I have considered. After that I have to place this paper on this drawing board, and I will place this paper in such a way that where I want to form that parallelogram. तो जहाँ पर आपको parallelogram बनाने का उधर आपको इसको mark करने का. Suppose I want to make this parallelogram here. Fix this by using drawing pin. Then we'll use this mirror and we'll place behind this thread, and you have to see that the image and the thread coincides with each other. By one eye you have to look at this. एक आंख बंद करके आपको बराबर coincide करने का है, और thread और image जहाँ पर coincide होता है you have to mark those 2 points. सेम वे दूसरे लाइन के लिए भी वही प्रोसीजर रिपीट करने का है. यू हैव टू प्लेस इन सच वे दैट थ्रेड एंड इट्स इमेज आर कोइंसाइडिंग. एट दैट पॉइंट यू हैव टू मार्क द 2 points. Once this is done, remove the paper. फिर अब ड्राइंग वाला पार्ट इसके अंदर शुरू होगा. We'll join these 2 points. These 2 points will be also joined.
After that, as we know that for P we have considered 50 grams, for Q also we have considered 50 grams. So we'll adjust the scale that 1 centimeter is considered as 10 grams. 1 centimeter को हम लोगों ने 10 grams consider किया. तो यूजिंग दिस स्केल मार्क 5 सेंटीमीटर, 50 ग्राम मतलब 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा. 5 सेंटीमीटर ऑन द लाइन ऑफ P, 5 centimeter on line of Q, then here you have to form the parallelogram. Now to parallelogram in school you have studied, we will be using set square. Set square use करके अपने को parallelogram बनाने का है. Place one of the set square in such a way that it is properly attached to the first line, और दूसरा सेट स्क्वायर उसको आगे सरकाने का. वी हैव टू मूव स्लोली फर्दर, आगे सरकाते जाएंगे जहाँ पर वो पॉइंट में मिलेगा. ये 5 सेंटीमीटर के मार्किंग पे लेके आए. देन वील ड्रॉ दिस लाइन. सेम वे फॉर दिस वन ऑल्सो. हियर ऑल्सो वील कंसिडर सेट स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन दिस फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन में फिर सेट स्क्वायर रखेंगे. और ये लाइन हमने कंसिडर किया. देन विल कंप्लीट दिस, कंप्लीट द पैरेललोग्राम बाय एक्सटेंडिंग द लाइन. So this represents your P, this represents your Q, and between them will be your resultant. ये होगा आपका R. अब दो चीज़ें हैं, एक R का लेंथ मेजर करने का है. तो यूजिंग दिस स्केल विल मेजर द लेंथ. सो इट इज़ कमिंग एज 5 सेंटीमीटर्स. तो R के लिए लेंथ कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर आ रहा है. बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू 10 ग्राम्स, सो इट कम्स एज 50 ग्राम्स. ये हो गया. देन वी रिक्वायर दिस थीटा. अपने को थीटा का भी ज़रूरत है यहाँ पर. तो थीटा के लिए प्रोटेक्टर यूज़ करने का है. विल प्लेस दिस प्रोटेक्टर हियर एंड प्लेसिंग दिस प्रोटेक्टर हियर. एंगल जैसा आपने स्कूल लेवल मेजर किया है, एक साइड से मेजर करना है, उसको रखकर एंगल मेजर करेंगे. दिस एंगल इज कमिंग एज हाउ मच? 120 डिग्री दिखा रहा है. तो थीटा इज कमिंग एज 120 डिग्री. तो अपने पास दो डेटा आया, ये हो गया 120 डिग्री. अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू कैसा आएगा? थीटा 120 डिग्री. ऑब्जर्व वैल्यू मुझे मालूम था 50 ग्राम था. फ्रॉम डायग्राम ऑल्सो वी हैव गॉट 50 ग्राम्स. और कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला. अभी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज गिवन एज R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा. ना P का वैल्यू अपने पास दिया है 50 स्क्वायर. ये मास को ही हम लोग कंसिडर करेंगे फोर्स, बिकॉज द रीजन इज दैट सब में G कॉमन होगा. तो G हर बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. Q विल बी कमिंग एज 50 स्क्वायर. 2 इंटू P इज 50, Q is also 50 into cos of 120. That is equal to, this is 50 square is 2500, 50 square is 2500 plus 2 into 50, 100 into 50, that comes as 5000. 5000 into cos of 120. Now cos of 120 को हम लोग लिखेंगे cos of 90 plus 30. स्पेशली दिस इज़ फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स. जिन्होंने मैथ छोड़ दिया उनके लिए कैलकुलेशन ट्रबल है. मैथ स्टूडेंट को तो ट्रिग्नोमेट्री में है ये एक्सप्रेशन, कंपाउंड एंगल एंड फैक्टराइजेशन में बराबर फॉर्मूला उसके लिए दिया है. नाउ 2500 प्लस 2500 दैट कम्स एज 5000. देन दिस इज प्लस 5000 इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा. नाउ कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा दैट कम्स एज माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री होगा. That is equal to, this is 5000 plus into minus 5000 into sin 30 is 1/2.
where it comes as 5000 minus 5000 into half is 2500, that is 2500. ना इसका तो स्क्वायर रूट ओरली निकल जाएगा, अपने को लॉग लेने का भी ज़रूरत नहीं. स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज़ 50. तो इसका मतलब है बाय कैलकुलेशन हियर वी आर गेटिंग 50. तो यहाँ पर तीनों के तीनों सेट हो गए. देखो, ऑब्जर्व वैल्यू, डायग्राम एंड कैलकुलेटेड. सेम वे प्रोसीजर अपने को रिपीट करना है. नेक्स्ट टाइम आई विल कंसिडर 100 ग्राम्स, हियर ऑल्सो 100 ग्राम्स. अभी 100 ग्राम्स डालेंगे. स्लॉटेड वेट 100 ग्राम in one of the hanger, another also 100 ग्राम, और बीच में भी 100 ग्राम डालेंगे. अगेन यू हैव टू प्लेस दिस पेपर. अभी इस बार क्या करना होगा, प्लेस ऐसा पेपर रखा था, इस बार हम ऐसा रखेंगे. दूसरा डायग्राम कंसीडर करना, अपने को शीट पे एडजस्ट करने का. यू हैव टू एडजस्ट दैट डायग्राम ऑन दैट शीट, और कैसे भी एडजस्ट करके लेके आना. ठीक है, अभी पेपर लेके आया, फिक्स किया इसको, ड्राइंग पिन रखा, another pin, then same procedure using this mirror we will mark the points मार्क करेंगे. फिर वही मिरर और इमेज जहाँ पर कोइंसाइड होगा वहाँ पर आपको मार्क करना है. वो आपको एक आंख बंद करके ही करना पड़ेगा, जैसे निशाना लगाते हैं. सेम प्रोसीजर, थ्रेड और उसका इमेज, एक्चुअल थ्रेड और उसका इमेज जहाँ कोइंसाइड होगा वहाँ पर अपने को मार्किंग करने का. रिमूव दिस, ये निकाल लिया. अब उसके बाद फिर वापस वही प्रोसीजर है. यूजिंग स्केल विल ड्रॉ द लाइन. ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. यूजिंग स्केल ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ये हो गया ज्वाइन. दिस टाइम P इज इक्वल टू 100 ग्राम है, तो P इज इक्वल टू 100 ग्राम, Q इज इक्वल टू 100 ग्राम. स्केल बदल देंगे ना, इस बार 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लोग 20 ग्राम ले लेंगे. तो लेना कितना लेंथ, 5 सेंटीमीटर लेने का. तो मेजरिंग दिस 5 सेंटीमीटर हियर. नहीं तो क्या ऐसे 10 लेंगे तो 10 सेंटीमीटर, फिर डायग्राम बड़ा बन जाएगा, पेपर में एडजस्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा. विल मार्क दिस 5 सेंटीमीटर मार्किंग हियर. हियर ऑल्सो विल मार्क 5 सेंटीमीटर, मार्क इट हियर. दोनों मार्क कर दिया. फिर सेट स्क्वायर यूज होगा. यूजिंग दिस सेट स्क्वायर विल कंसीडर फर्स्ट सेट स्क्वायर, और इसको यूज करके अपने को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का. ठीक है, पैरेलल लाइन किधर, जहाँ पर मार्किंग 5 सेंटीमीटर का किया है. ये हो गया पैरेलल लाइन इसका. सेम वे दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन पे एडजस्ट किया, एंड इफ यू मूव फर्दर, ये इसको इधर ज्वाइन किया. बस एक्सटेंड दिस. और इसको एक्सटेंड करो. तो ये दो चीज़ आपको मेजर करनी है इसके अंदर, R और थीटा. ये P, ये Q और ये R. R का लेंथ अपने पास आ रहा है इसके अंदर 5.1 दिखा रहा है लेंथ. तो ठीक है, R लेंथ इज़ 5.1 इंटू 20 इंटू 5.1 लेके जाएंगे तो दैट विल बिकम एज 100. 5 2 50 to 102 ग्राम्स आएगा. ये एंगल मेजर करने का है. यूजिंग दिस प्रोटेक्टर विल मेजर द एंगल. एज यूजुअल यू विल मेजर द एंगल. जस्ट अ मिनट, उल्टा रखा है. If you measure the angle, this time the angle is coming as 118 डिग्री दिख रहा है. थीटा इज कमिंग एज 118 डिग्री. तो फिर बाकी कैलकुलेशन फिर वैसे ही प्रोसीड करेंगे. यहाँ पर वैल्यूज आ गया. 100 ग्राम के लिए क्या होगा, ये 118 डिग्री आया.
ऑब्जर्व वैल्यू 100 ग्राम आया, फ्रॉम डायग्राम ऑल्सो वी हैव गॉट 100 ग्राम्स। अब कैलकुलेशन वाला कैसा है, फिर वही कैलकुलेशन वाला प्रोसीजर रिपीट करना है अपने को। जैसे यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन सेम, दूसरे के लिए भी कैलकुलेशन r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू, मतलब 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू कॉस ऑफ 118 ना। 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10,000 है, फिर 100 का स्क्वायर 10,000 है, 100 इंटू 100 10,000 प्लस इंटू 2 दैट इज 20,000, 20,000 इंटू कॉस ऑफ 118 है। अभी थोड़ा देर पहले देखा ना, कॉस ऑफ 120 को 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 किया, तो इसका मतलब ये भी माइनस साइन 28 डिग्री आएगा। दिस इज साइन ऑफ 28 डिग्री। सो अल्टीमेटली दिस r विल बी इक्वल टू 10,000 is 20,000 प्लस इंटू माइनस, दिस विल कम एज माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया 20,000 इंटू साइन ऑफ 28 डिग्री बोला है। अभी साइन ऑफ 20 डिग्री बोला है अपने को, तो साइन ऑफ 20 डिग्री के लिए नेचुरल साइन में जाना है अपने को। नेचुरल साइन में 28 डिग्री देखेंगे, 28 डिग्री का 0.4695 है, तो ये आ गया 0.4695। ये तो ओरली भी कैलकुलेशन हो सकता है, इसके लिए लॉग टेबल लगाने की जरूरत नहीं। 20,000 इज केप्ट एज इट इज, माइनस 20,000 इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 5 10, 1 कैरी 2 9 18, 1 19, 1 कैरी 2 6 12, 1 13, 1 कैरी 2 4 8, 1 9। दिस इज 20,000 into this will become 93940. This is the value coming. ये आ गया अपने पास वैल्यू, तो 20,000 माइनस 9390, दिस डिफरेंस कम्स एज 0 माइनस 0 इज 0, 1 कैरी 10 माइनस 9 दैट इज 1, 9 माइनस 3 दैट विल बिकम एज 6, 9 माइनस 9 दैट विल बिकम एज 0 एंड दिस इज 10,610। अब इसका स्क्वायर रूट अपने को चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, r is equal to, this will be anti-log of half of log of 10,610, that is anti-log of half of log of 10,600, मतलब डेसिमल के पहले कितना डिजिट है इसको 5, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका 4। तो मैंटिसा देखेंगे इसके अंदर 10 6 1, 10 का 6 इट इज 0253, और उसका फर्स्ट मीन डिफरेंस है, तो फर्स्ट मीन डिफरेंस कितना है, इट इज 4, 0253 प्लस 4 0257। अभी देखो नीचे ये वैल्यू है ना 253, तो इसलिए मैंने मीन डिफरेंस भी नीचे वाला यूज़ किया। अगर ऊपर वाला होता तो ऊपर वाला मीन डिफरेंस लेते, तो 253 प्लस 4 दैट विल बिकम एज 0257, दैट इज एंटी लॉग ऑफ, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 2 into 0, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 carry, 2 8 are 16, that is more than sufficient। 4 डिजिट चाहिए अपने को एंटी लॉग में। अभी एंटी लॉग 0 1 का 28, 0 1 का 28 एंटी लॉग में देखने के अपने को, डेसिमल के बाद वाला 0 1, ये रहा उसका 2 1028, और 8th मीन डिफरेंस अगर कंसीडर करेंगे तो 8th मीन डिफरेंस इज कमिंग एज 2, तो 1028 प्लस 2 1030, तो दिस कम्स एज 1030। डेसिमल के बाद इधर 2 है, 2 प्लस 1 3, मतलब 103.0 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ r, और वही टेबल पे यहाँ पर फिल होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू दिस विल बिकम एज 103 ग्राम। सिमिलरली यू हैव टू प्रोसीड विथ थर्ड वन। थर्ड वाले में इधर 150 ग्राम ले लेना और इधर 100 ग्राम लेना, फिर उसके बाद देखना कैसे बैलेंस होता है, जो वेट आएगा उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करने के। ओके।